Fear of missing out, FOMO, is having thought on missing out on something that might increase our happiness. Fear of missing out has become such a part of our life that the anxiety, often aroused by social media, is taking the better from us and even our living. And if we cannot overcome it on time, it might not warrant a healthy lifestyle and future. Good morning, fellows. I, Krina Kumbhani, with Mahi Pagdal, are here today to talk over how to turn fear of missing out into joy of missing out with respected doctor, psychologist Gunwant Zinzala. We wholeheartedly welcome you to Gajera School for today's session. Dr. Gunwant Zinzala has done MBBS and Diploma in Psychological Medicine at Government Medical College in Bhavnagar and is currently practicing as a psychiatrist at Shraddha Hospital since last 10 years. He has visited as an honorary faculty at L&T Health and Dialysis Center, Shifa Hospital and Lilaba Multi-Speciality Hospital. He is also a member of Indian Psychiatry Society and Indian Medical Association. His research paper on eating disorder on college student of Bhavnagar published in the Indian Journal of Psychiatry and Archie's Journal of Psychiatry. He is an expert in cognitive behavior therapy and psychotherapy and has also expertise in de-addiction specialty among Surat and has also attended various conferences during residency and practice period. Experiencing fear of missing out, FOMO, can feel like a combination of anxiety and tension of the everyday life. FOMO comes from social comparison, which makes us think that what others are doing is better than what we are doing, or that if we will be somewhere else, we will be happier than we are right now. If we are gonna define or designate FOMO, fear of missing out, as a feeling, it will probably be the persistent worry about everyday situation as well as the future. Now I will request Dr. Gunwant Zinzala to throw some light on the topic. It is a very deep psychology. Please guide us through it. Good morning to everyone. Today I will talk about FOMO, fear of missing out. लापता होने का डर वर्सेस जोमो, joy of missing out, गुम होने की खुशी. तो first of all, I have talked about FOMO. The world is our buffet. In high-profile society, we are opportunity to do with connect online, keep with social media and काफी टाइम हम ऑर्गेनाइज सोशल पार्टीज, इवेंट्स, ऑर्गेनाइज वेबिनार्स, सो हम काफी लोगों से कनेक्ट होते हैं, उससे रिलेशन बढ़ाते हैं, उससे लगाव बनाते हैं, पर तो भी हम ऐसा फील होते हैं, उनको गायब होने का डर होता है और उसकी वजह से हम कमी महसूस करते हैं. So, FOMO can arouse anxiety, decrease sleep, and also impact on our life event. So, two main things are responsible for today. एक social media है और दूसरा है social pressure. So, I will explain about the social media and social pressure affect the FOMO. First of all, social media. Social media could means greater invention or belie us on existence. मतलब सोशल मीडिया है वो मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कार है, ऐसा मान लीजिए, और उसके विनाश का कारण भी शायद वही हो रहा है, ऐसा आज के टाइम में हमें महसूस हो रहा है. सो सोशल मीडिया इज अ प्रॉपर्टी, एडिटिंग प्रॉपर्टी, एंड मैन हैज इट्स ओन एडिटर. सो सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी मेड FOMO a real epidemic. Social media and technology can lead our reliance of connection. So, social media platforms like Facebook, Twitter, and Instagram are identity to FOMO. We addicted on text messages, phone calls, Facebook, and go to deep and deep in social media. काफी टाइम हम उबेर, ओला से टैक्सी मंगाते हैं, स्विगी, जोमेटो से हम फूड ऑर्डर करते हैं. पर कोविड-19 पैंडेमिक में हमने स्कूल में ऑनलाइन लेक्चर भी सोशल मीडिया के थ्रू शुरू किए थे. पर क्या हुआ, फर्स्ट वेव में हम लॉकडाउन था, सेकंड वेव में भी लॉकडाउन था, शायद थर्ड वेव में हमने स्कूल शुरू कर दिया था. तो उस टाइम जो शुरुआत हुई थी वो बहुत अच्छी तरह हो रही थी, लेकिन
उसके बाद क्या रेगुलर रूटीन जो स्कूल टाइम था, उसके बाद बच्चों के दिलो दिमाग पे ये सोशल मीडिया जो है वो उसके इमेज बनकर राज कर रहा है। बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। ऐसे सोशल मीडिया है वो बच्चे को कहीं ना कहीं एडिक्ट कर रहा है और उसकी वजह से उसके लाइफ में बदलाव आ रहे हैं। अब सेकंड थिंग है सोशल प्रेशर। ज्यादातर ये सोशल प्रेशर है वो पेरेंट्स क्रिएट करते हैं। तो ये सोशल प्रेशर है वो अनदर ड्राइव ऑफ फोमो टू प्रेशराइज द पेशेंट और चाइल्ड टू मीट right person at right places. It is our sense of duty और strive to get ahead, आगे बढ़ने की प्यास, भूख समझ लीजिए कि हमें ऐसे पर्सन से मिलिए कि जो हमें कुछ दे सके, कुछ मिल सके, ऐसे से हम कंबाइन होके उससे रिलेशन रखे। But for example, last Friday night I have attended a last social occasion, but my family has wait and want to do quiet dinner with me. So this is not a fulfill our wishes. So social pressure, social media with FOMO cannot enhance the joy. ये FOMO है एक सामाजिक तुलना है. There is comparison to others. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ऐसे बोलते थे, हमारे पास्ट प्रेसिडेंट, कि नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन सन एंड मून बिकॉज देयर हैव साइन इजंट इन ईच टाइम। सुल्विन विंट्स करके एक साइकोलॉजिस्ट है, हमारे साइकियाट्री में काफी साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने काफी नॉवेल भी लिखी है और काफी अच्छी तरह वो बोलते भी है। तो उन्होंने लिखा था कि मेरी कंपैरिजन है ना वो दूसरे किसी से मत करो, क्योंकि उससे हम कमी महसूस करते हैं, हमारे में कुछ ऐसी चीज है जो हमें तकलीफ देती है और इसकी वजह से हम इनसिक्योरिटी फील करते हैं। वो कहते थे कि लाइफ इज अ सीरीज ऑफ ट्रेड्स ऑफ एंड दिस इज नो वे टू ऑल एक्सपीरियंस इन ऑल डे। ये फोमो है वो एक ऐसी चीज है जो हमें उपयोगी भी हो सकता है और वो हमें काम करने के लिए प्रेरित भी कर सकता है। जो ऐसा होए और ऐसा हो जाए तो हम काफी लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, हमारी बिजनेस में हम प्रोग्रेस कर सकते हैं और हम अपनी कंफर्ट जोन जो हम सिक्योर फील कर रहे हैं उससे हम बाहर निकल के दुनिया को देख सकते हैं। बराबर। तो ये फोमो जो है उसको एंजॉय करना चाहिए और कैसे एंजॉय करें उसके लिए हमें जोमो की ओर जाना चाहिए। जोमो मीन्स जॉय ऑफ मिसिंग आउट। तो सिंपल वर्ड है कि आप स्पेशल रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड फियर विथ जॉय कैन एनहांस आवर हैप्पीनेस। सो फियर इज अ पावरफुल फीलिंग्स, वो एक फीलिंग्स है फियर जो कोई भी नहीं चाहता कि हमें फियर हो। तो फियर इज अ पावरफुल फीलिंग दैट इज बेनिफिशियल टू अस आउट इन डायर पोजीशन। ऐसी स्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी कंडीशन में हम उससे दूर भागे। बट वी वांट फीलिंग फियर डे इन डे एंड डे आउट। सो embracing a joyful attitude can increase happiness, foster gratitude, and increase our health or improvement our health. Also decrease stress, anxiety, and pain. And this is the JOMO is a powerful immunity booster like COVID-19 vaccine. So काफी टाइम अपने पेशेंट्स को क्लिनिक में ऐसा बताता हूँ कि आप सोशल मीडिया से दूर रहे या उसका लिमिटेड यूज कीजिए और कैसे और कितना यूज करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम ऐसा डाइवर्ट कर सकते हैं कि आप सोशल मीडिया से उपयोग भी करें पर उसका व्यक्तिगत रूप से आनंद लीजिए, ऐसा लिमिटेड यूज कीजिए। तो ये जोमो है, वो जोमो को हम एक्सेप्ट क्यों करते हैं
बराबर, उसके भी 4 रीजन है। एक तो आपके पास टाइम होना चाहिए, मोर टाइम। इन आवर रूटीन डे टू डे लाइफ वी हैव नो टाइम टू लिविंग लाइफ, सो आवर टाइम इज प्रीशियस टू एवरीवन फॉर लिविंग लाइफ। इंस्टेड ऑफ spending more few moments consumable by text messages, phone calls, Facebook, Instagram, then we want to or we enjoy busyness like exercise, meditation, playing games and experience life. Second thing है spontaneity, सहजता। हमारी लाइफ में सहजता होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि फ्री मोमेंट्स फ्रॉम अनकमिटेड पोजीशन एंड ऑनलाइन एडिक्शन मीन्स मच मोर स्पेस एंड टाइम फॉर स्पॉन्टेनिटी। हम सहजता को स्वीकार कीजिए कि हम जैसे हैं उसका ऐसे ही यूज कीजिए, ऐसे ही अपना पर्सनालिटी डिस्क्राइब कीजिए। थर्ड थिंग है वेकिंग अप। Our technology has dead the emotion and feelings, so it can also hurt to alive. We have feel free or feeling from happiness to anger. हम बहुत चिड़चिड़ेपन से काफी लोगों से बात करते हैं। Joy to despair, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं। We can get messy, so we can enjoy our life with happiness. So life is wonderfully vivid, like embracing a high, weathering lows and savoring everything in between. काफी टाइम हम ऐसा सोचते हैं कि हम कहीं ऐसी जगह पे जाए वहां अकेला महसूस करें, हमें शांति मिले, ऐसी चीजों को हम ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। तो फोर्थ थिंग है स्लोइंग डाउन, स्लोअर पेस। मतलब आप धीरे से म्यूजिक बड़े बजता हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, साइलेंट म्यूजिक हमें बहुत आनंद देता है। तो स्लोअर पेस ऑल्सो कैन क्रिएट हैप्पीनेस एंड क्रिएटिविटी। व्हाट डू यू गेट आइडिया अबाउट शावरिंग, daydreaming or walking in garden? This is a quiet place can create a happiness. चलिए ये जो जोमो है, वो जोमो joy of missing out, वो embracing, how to embracing a जोमो, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम कैसे उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो पहले डिस्कनेक्ट करिए, अपने जो भी सोशल मीडिया है उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। टू डिस्कनेक्ट आवर स्मार्टफोन, क्लोज योर लैपटॉप एंड स्टेप अवे फ्रॉम योर डिवाइस एंड यू एंगेज इन डेली रूटीन एक्टिविटी। सेकंड थिंग है वो रिफ्लेक्ट कीजिए। आप पूरे दिन काम करते हो, पढ़ाई करते हो, जो भी करते हो, लेकिन उसमें से जो भी टाइम मिले फ्यू मोमेंट्स अपने लिए सोचिए, अपने लाइफ के बारे में सोचिए, क्या कहना चाहते हैं, बराबर। तो आप ऐसा सोचोगे ना तो आपको महसूस होगा कि मुझे कौन सी एक्टिविटी या क्या करने से मुझे खुशी महसूस होती है। लाइक पूरे दिन नाइट ड्रेस में छुट्टी के दिन रहना, आराम से चाय पानी कॉफी वगैरह बेड पे मम्मी से मंगाना, गार्डन में घूमना, हल्के हाथों से लेमन ग्रास को छूना, गो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट डेस्टिनेशन एंड प्ले ब्रॉड गेम विथ फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स। ये चीजें जो है हमें रिफ्लेक्ट करती है, हमारी लाइफ से जुड़े रहने की, हमें आनंद मिलने के लिए जो हमें करना पड़ता है उसे अवेयर करती है। लास्ट थिंग है कि रिकनेक्ट, हमें कनेक्शन बढ़ाना है। रादर देन रिकनेक्ट टू इंटरनेट और सोशल मीडिया एडिक्शन, वी
have conversation with our friends or family members and look them in eyes. I have spent more time. मैं कहता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी आपको मिलेगी। आप अगर अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड से उसे बातें करोगे ना, सबसे ज्यादा टाइम उसमें स्पेंड होगा जो आप करना चाहो तो। अगर आपके पास फैमिली इतनी बड़ी नहीं है, आपके पास फ्रेंड सर्कल नहीं है, तो रिकनेक्ट टू योर फेवरेट इंटरेस्टिंग थिंग्स लाइक फोटोग्राफी, म्यूजिक, कुकिंग, हैकिंग और सर्फिंग। कीप स्टेइंग। आप पहले न्यूट्रल हो जाओ, आपको जो करना है उसके बारे में सोचिए। पहले कीप स्टेइंग हो जाओ एंड नॉट कंपेयर टू अदर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। फोकसिंग ऑन योर सेंस ऑर्गन मीन्स कि आप पेन अपने बॉडी से जो भी पेन होता है उसको फील कीजिए। मुझे पैरों में से लेके हाथों में से लेके माइंड तक आराम से उसको फील कीजिए एंड देन डू मेडिटेशन। बाद में मेडिटेशन कीजिए। Each and every day you have spent for 3 minutes to your brain to wash out the social media content. आप 3 मिनट के लिए जो अपने ब्रेन को आराम से टाइम दोगे तो सोशल मीडिया को डिलीट कर देगा और आप हैप्पीनेस को पा सकोगे। In Swaminarayan Sampradaya, I have also told about Swaminarayan Sampradaya. One campaign was the latest घर सभा। घर सभा है वो एक्चुअली वो उनके लिए भी है, लेकिन मैं उसको दूसरे अर्थ में पॉजिटिव थिंग में बताऊं कि घर सभा से वो फैमिली को जॉइंट में रखते हैं, उनको नए थॉट्स देते हैं, नई क्रिएटिविटी देते हैं जो कनेक्ट कर सके और सोशल मीडिया से दूर रख सके। So, I have explained about the FOMO and JOMO. आप अगर खुल के जियो, हर भी चीज कोई भी चीज हो उसको पॉजिटिव लो तो वही चीज आपको जोमो तक ले जाएगी, और उसको आप नेगेटिव थिंग में लोगे तो वो फोमो की ओर ले जाएगी। मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देती हूँ। एक टीचर थे, रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर थे, तो वो सोच रहे थे, वो अपनी एक डायरी में लिख रहे थे कि आज मैं बिल्कुल फ्री हूं, मेरे पास कोई काम नहीं। बराबर। दूसरी चीज थी, मैं बहुत बोरिंग हो रही हूं, मेरे पास है सब कुछ लेकिन मैं उसका यूज नहीं कर पाई। तीसरी, मैं आज पूरी, तीसरा पॉइंट था उसका कि मैं आज पूरी खाली हूं, मेरे अंदर कुछ है ही नहीं। उन्होंने एक पेज पे लिखा, बाद में वो सो गए। दूसरे दिन जब उसने देखा वो डायरी में, वो बुक्स में लिखा था कि आप अभी फ्री हो, आप बिल्कुल फ्री नहीं हो। आपके पास आपकी फैमिली है, आपके पास आपके हस्बैंड है, आपके पास आपके बच्चे हैं, बच्चे के बच्चे हैं, आपके पास टाइम की कमी है। आप उसको एंजॉय कीजिए। दूसरी चीज थी कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं यूज नहीं कर सकती, मैं यूजलेस हो चुकी हूँ। तो उन्होंने, हस्बैंड ने लिखा था वो दूसरे पेज पे कि आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, टाइम है आपके पास। तो आप टाइम को मैनेज कीजिए। आपके साथ आपका हस्बैंड है जो रोज सुबह से लेकर शाम तक मिलता नहीं था, वो आप कंप्लेन कर रही थी उसकी कि आप टाइम नहीं दे रहे हो। आज मैं पूरा फ्री हूँ। और तीसरी चीज थी कि मैं उदास हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उसका कारण है कि मुझे क्रिएटिविटी नहीं है। आपके जो इंटरेस्ट है उसको आगे बढ़ाए। आप फोटोग्राफी करती थी, आप म्यूजिक सुनती थी, आप डांस करती थी, तो पहले की जो आपकी एक्टिविटी है वो क्लियर कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये दोनों व्यू ऐसे है कि जिसको नेगेटिव थिंग में भी ले सकते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड में भी ले सकते हैं। सो हमें फोमो से ज्यादा जोमो की ओर जाना चाहिए। हमें हमारे जीवन में पॉजिटिविटी का रेशियो है वो ज्यादा होना चाहिए। दोनों चीज वाइस वर्सा है। आप एक को चुनते हो तो आप उसकी ओर जाओगे, आप दूसरे को चुनते हो तो ऊपर की लेवल तक जाओगे।
हाँ, तो आई एक्सप्लेन अबाउट द जोमो एंड फोमो। जब आप सोशल मीडिया में लॉगिन करते हो और आप देखते हो कि आपके कुछ दोस्त आपके बिना मजेदार चीजें कर रहे हैं जिसमें आप शामिल नहीं हो, और आप और स्क्रॉल करते हो, तो आपको पता चलता है कि आपके अलावा सब लोग नई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं और एक नई मूवी आई है जो आपने नहीं देखी पर सबने देख ली है। तब आपको फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का एहसास होता है। फोमो हमें सोशल कंपैरिजन से होता है, जिसमें हमें लगता है कि हमारे सिवाय सबके जिंदगी में कुछ ना कुछ एक्साइटिंग हो रहा है और हम उसका हिस्सा नहीं है। इससे ज्यादातर एहसास हमें सोशल मीडिया के पोस्ट किए फोटोज से होता है। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां हमें सारे लोग क्या कर रहे हैं उसकी जानकारी मिलती है, और अगर हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये हमें बहुत कुछ नया सिखा सकता है, पर एक सोशल लाइफ कंपैरिजन का भी जरिया बन सकता है जो हमें आगे जाके सेल्फ डाउट्स देता है, जिससे हमें खुद से भरोसा उठ जाता है और इनसिक्योरिटी महसूस होती है। और अगर इससे टाइम पर ओवरकम ना किया जाए तो हमें सभी बातों पर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का एहसास होता है। तो हमें इस फोमो को किस तरह से ओवरकम करना है? तो इस सवाल का पहला जवाब हमारे माइंड में ये आता है कि हम सोशल मीडिया छोड़ दें, पर यह सोल्यूशन कई लोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। तो सोशल मीडिया को एकदम छोड़ने से अच्छा हम इसमें हमारा टाइम लिमिटेड कर सकते हैं या कुछ डेज ऑफ ले सकते हैं, जिससे आपको जिंदगी की अहमियत पता चलती है और आप खुद को किसी और से कंपेयर करना कम कर देते हो। कभी कभी हमारे फ्रेंड्स की सोशल मीडिया लाइफ हमारी लाइफ से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, पर अगर हम सच में लाइफ की बात करें तो उनकी एक्चुअल लाइफ उनके सोशल मीडिया लाइफ से बहुत अलग होती है। वो कई बार उन्होंने दूसरों को दिखाने के लिए रखे होते हैं, और इसी चीज को देखने से हमें लगता है कि हमारी लाइफ बहुत ही बोरिंग है, पर उनकी लाइफ असलियत में हमारी लाइफ जैसी ही होती है, बस हमें वो दिखती नहीं। भले ही उनके कुछ पोस्ट देखने से हमें ये लगता है कि उनकी लाइफ हमारी लाइफ से बेटर है। As sir explained us, instead of social comparing, मतलब खुद की लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर करने से अच्छा उनकी लाइफ से इंस्पिरेशन ले और खुद आगे बढ़े। अगर उन्होंने ऑलरेडी सक्सेस अचीव कर ली है और आप अभी ऑन द वे हो, तो आपको ऐसा फील नहीं करना कि उन्हें हमसे पहले क्यों सक्सेस मिली। ऑफ कोर्स बिकॉज उन्होंने आपसे पहले स्टार्ट किया था। और स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, सर ने बिल्कुल सही कहा। व्हेन वी टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम अ फोन और डिवाइस, व्हेन वी टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम सोशल मीडिया, और हम रियल में सोशलाइज करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे हमें लगाव है उन लोगों के साथ, तो कुछ अलग ही पीस ऑफ माइंड हमें मिलता है। काफ़ी टाइम्स ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे सर्फ करने से सोशल कंपैरिजन ज़्यादा टीनेजर्स में बढ़ जाती है। वो मतलब कुछ झलक देखते हैं अपने फ्रेंड्स की लाइफ की, पर उनकी रियलिटी में उनकी लाइफ भी हमारे जैसी होती है, ऑर्डिनरी होती है। तो मेरा आपसे ये एक क्वेश्चन है कि क्या फोमो एक इल्यूजन है या फिर रियलिटी? Good question. So, FOMO is a feeling, not an illusions. Illusions means misinterpretation of belief. ये मान्यता नहीं है कोई, बराबर, जिसका हम इंटरप्रिटेशन करें। देखिए, इसका एक एग्जांपल देता हूँ। इल्यूजन किसको बोलते हैं? कि फ्लश पे या फ्लोर पे हमें कुछ दिखाई दे, स्नेक दिखाई दे या जो भी है, हाँ, उसको इल्यूजन्स बोलते हैं, बराबर। तो ये जोमो है या फोमो है, वो हमारी फीलिंग्स है, हाँ। और मैंने पहले भी बोला था, अभी एक्सप्लेन किया था कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, द फियर इज पावरफुल फीलिंग that is beneficial to us out in dire position, हाँ? तो ज्यादातर फोमो है एक फीलिंग्स है, दूसरों को देख के हम कंपेयर करते हैं कि ये जो हो रहा है वो मैं क्यों नहीं कर पा रहा, या मुझे क्या करना है, बराबर है। वो जो कंफ्यूजन है उसको हम समझ नहीं पा रहे, हाँ? तो ये इल्यूजन्स नहीं है, ये फोमो है, ये फीलिंग्स है। सर, कोरोना महामारी के दौरान वो पता है सब कुछ बंद था, मतलब द वर्ल्ड वाज शट डाउन। हम अपने घर पे लॉक थे, फिर भी अकॉर्डिंग टू रिसर्च
तब जो फोमो के केस थे वो ज्यादा थे एंड वर्सेस द रियलिटी जब कोरोना नहीं था तब, तो इसके कोई स्पेसिफिक रीजन थे? काफी है। आपने पूछा है कि फोमो के केस ज्यादा थे, पर वो किस बेस पे थे? मैं ऐसा बोलता हूँ कि फोमो बहुत लेस था। एक्चुअली मैं ऐसा बोलता हूँ कि फोमो बहुत लेस था। उसका कारण है कि लॉकडाउन के दौरान पूरी फैमिली साथ में बैठती थी, बराबर है। हम फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी फ्रेंड्स, हाँ, सबके साथ इंटरकनेक्ट हो रहे थे, हम जुड़ रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे, खेल कूद कर रहे थे। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि उस टाइम फोमो लेस था। और दूसरी ओर देखते हैं तो पेंडेमिक के टाइम न्यूज चैनल जो सोशल मीडिया है, हाँ, वो फोमो को बढ़ावा दे रहा है। इसीलिए सोशल मीडिया कंटेंट है, लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज है, हाँ, फेसबुक है या जो भी है, वो फोमो को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि उस टाइम जो फोमो था, जो फियर था, वो पेंडेमिक का फियर था। बाकी आप जो फियर की बात कर रहे हैं वो फियरलेस था। आपने अभी कहा कि जो फियर है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये एक फीलिंग है, तो हमारे मन पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है? मतलब कोई ऐसे फीलिंग्स? ये चीज ऐसी है कि फीलिंग्स क्या है? फियर तो हम समझ गए कि वो पावरफुल फीलिंग्स है, पर ये फीलिंग्स क्या है? फीलिंग्स इज परवेसिव एंड सस्टेन्ड फीलिंग टोन that express outer world of men। हाँ, मतलब ये जो फीलिंग्स है हम उसको अभिव्यक्त करते हैं, हाँ, उसको फीलिंग्स बोलते हैं। हमारे जो भी इंट्यूशन है, जो भी है, हाँ, वो हम बाहर उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो ये फीलिंग है, वो हमें ऐसा काफी टाइम ऐसा डरावना महसूस होता है, बराबर, और उसकी वजह से हम एंशियस हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, हाँ, और उसकी वजह से हम फोबिया डेवलप होता है। धीरे धीरे हमें स्लीप पैटर्न हमारी इरेगुलर हो जाती है और हम अपनी जो वर्किंग कंडीशन है उस पर भी उसकी इफेक्ट डालते हैं। हम स्लो डाउन हो जाते हैं, अपने वर्क में स्लो डाउन हो जाते हैं, काम करने की इच्छा नहीं होती, हमारा मूड ऑफ होता है, कंफ्यूज होते हैं, हमारे कॉन्सेंट्रेशन नहीं रख पाते, कोई भी काम हो तो हम कर नहीं सकते, हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो ये फीलिंग्स है वो अगर फियर में कन्वर्ट हो जाए तो एंजाइटी, डिप्रेशन तक हो सकती है। अगर मेरा कोई फ्रेंड है या मेरा कोई कलीग है जो फोमो एक्सपीरियंस कर रहा है और मुझे उसके हिंट्स मिल रहे हैं कि ही इज गोइंग थ्रू फोमो, तो हाउ कैन आई हेल्प हिम? मतलब मैं उनका सहारा कैसे ले सकती हूँ? आपका अगर कोई फ्रेंड है और वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब उसका कॉन्फिडेंस है वो लॉस हो जाएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि वो फोमो में है? पहले उसका व्यू देखिए, उसकी हिस्ट्री पूरी लीजिए, उसका इंटरव्यू लीजिए, उससे बातचीत करें, हाँ, कि ये जो फोमो है वो कैसे डेवलप हुआ है, उसका रीजन क्या है। हाँ, वो सोशल मीडिया में ज्यादातर एक्टिव रहते हैं, हाँ, दूसरा कोई फियर है, हाँ, कि वो सोशल कंपैरिजन होती है। काफी टाइम पेरेंट्स हैं वो सिबलिंग रिवाल्वरी, जिसको बोलते हैं, 2 बच्चे हो हमारे या 2 बच्चे में हम कंपैरिजन करते हैं, ये बच्चा बहुत अच्छा है तो कुछ करता नहीं है या जो भी है, हाँ, उसको सिबलिंग रिवाल्वरी बोलते हैं। उस टाइम क्या होता है, बच्चा कोई सोशल मीडिया का यूज नहीं कर रहा हो लेकिन तो भी वो ऐसा महसूस होता है, उनको ऐसा इंफीरियरिटी महसूस होती है कि मेरे भाई को बहुत अहमियत देते हैं या इम्पोर्टेंस देते हैं, मैं ऐसा करता हूँ तो भी मुझे कुछ मम्मी पापा कुछ बोलते नहीं है, या मुझे इतना जो लव करना चाहिए वो नहीं करते। उसकी वजह से वो फोमो में चला जाता है, बराबर। तो उसे पहले आप इंटरव्यू लीजिए, उसके साथ बैठ के बातचीत कीजिए कि किस वजह से वो फोमो में चला जा रहा है और फोमो की वजह से उसमें क्या बदलाव आया है, उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आए हैं। काफी टाइम जो हमारा फ्रेंड्स होता है, हमारे साथ काफी घुल मिल के आनंद से हमारे साथ रहता हो, वो हमसे दूर होता जाए, शांति मिलने की राह पे वो चला जाता है। मुझे किसी से कनेक्शन नहीं रखना है, मैं अकेला चला जाऊँ, वहाँ शांति मुझे मिले, या उनके बिहेवियर में चेंजेस आए, कैसा चिड़चिड़ापन हो, कोई भी बात सिंपल सी हो और उसकी वजह से वो बहुत गुस्से में आ जाए, या उनके वर्ताव में चिड़चिड़ापन जैसा महसूस हो, कंफ्यूज हो, वो बात करे 2 बार पूछो तो भी वो कंसंट्रेट ना कर पावे, या उनका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो डाउन होता जाए, तो हम उसको ऐसा कह सकते हैं वो फोमो में, एंजाइटी में चला गया है।
और पैनिक सिम्टोम आओ। पैनिक मीन्स घबराहट हो, बेचैनी हो, डिस्कम्फोर्ट हो, पाल्पिटेशन हो, पर्सपिरेशन हो, नर्वसनेस हो, ये उनमें फील हो तो हम ऐसा फील कर सकते हैं कि वो एंजाइटी फोमो में एक मिसिंग कर रहा है, उसको डर है कि मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन उनकी सोच ऐसी होती है, उनके थॉट्स ऐसे विचार होते हैं जिसकी वजह से वो फोमो की ओर चला जाता है और एक एंजाइटी का पेशेंट बन जाता है। तो ऐसे पेशेंट या ऐसे फ्रेंड को हम पहले उसको आराम से उसकी हिस्ट्री लो, उसका इंटरव्यू लो, बाद में उसका सिम्टोम देखो और उसको काउंसिल कराओ कि उनका कौन सा एरिया वीक है जिसमें हम पीछे रह रहे या वो पीछे फीलिंग कर रहा है ऐसे फियर की, वो पहले उसको एक्सप्लेन करो और उसको काउंसिल करो। उसके कंपेयर न करने के लिए दूसरों से ऐसा उसके मम्मी पापा को इन्फॉर्म करो। हाँ, अगर सिबलिंग रिवाल्वरी का केस है तो आप उनको इन्फॉर्म कीजिए कि आपके मम्मी पापा को पता ही नहीं होता, क्योंकि उनके लिए सब बच्चे सेम ही होते हैं और वो फीलिंग हमारी होती है कि हम ऐसा सोच रहे हैं। हाँ? और बाद में जरूरत लगे तो उनको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाओ, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट ऐसे हैं जो उनको एक थॉट प्रोसेस से लेके उनके बिहेवियर में जो चेंजेस आता है, हाँ, उसको रोक सके। बाकी काउंसलिंग, मेडिटेशन, हाँ, वो सब चीजें ऐसी है कि जिसको अप्लाई करने से हम उसको हेल्प कर सकते हैं। अगर वो कोई सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं हमारे फ्रेंड्स, तो हमें उन्हें गाइड करना है। और अगर वो एज यू टोल्ड सिबलिंग रिवलरी का केस है तो हमें डेवलप करनी है पेरेंट्स की फीलिंग, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि ये सब एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज वो ऐसे ही माइंडसेट में ब्रॉट अप हुए हैं। और हमारी जो जनरेशन है उसमें मोस्ट ऑफ सोशल कंपैरिजन या फिर सोशल प्रेशर या फिर पेरेंट्स की जो टैलेंट्स का जो कंपैरिजन होता है, उससे हम ज्यादा ऐसे जोन में चले जाते हैं कि हमें सेल्फ डाउट्स आने लगते हैं और हमारी जो सेल्फ एस्टीम है बहुत ही लो हो जाती है। देखा जाए तो कि ये जो फोमो जो फीलिंग है, फियर ऑफ मिसिंग आउट की, ये मोस्ट ऑफ टीनेजर्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि सोशल मीडिया यूज़ वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो क्या ऐसी नेगेटिव मेंटल हेल्थ क्या टीनेजर्स के फ्यूचर पे कोई ऐसा असर हो सकता है? यस, ज़्यादातर जो ये सोशल मीडिया का जो यूज़ करते हैं वो टीनेजर्स करते हैं। हाँ, हमारे पास दो है, एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ है और दूसरा है नेगेटिव मेंटल हेल्थ। टीनेजर्स हैं वो काफ़ी टाइम ऐसे 10वीं 12वीं से लेके कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, हाँ, वहाँ तक उसके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, हाँ, और उसमें वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सअप जो भी है, ज़्यादातर टाइम फ़ोन पे ही। मैंने काफ़ी टाइम देखा है कि काफ़ी, मेरे पेशेंट की बात कर रहा हूँ, काफ़ी टीनेजर पेशेंट जो है वो कंसल्टिंग रूम में आते हैं ना तो भी हेडफोन लगा होता है या ईयरफोन लगा होता है। हाँ, मैं डॉक्टर होके भी इतना नहीं लगा रहा हूँ, वो पेशेंट होके भी इतना जो सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, कहने का मतलब ऐसा है। हाँ, तो मैं काफ़ी टाइम सोचता हूँ कि ऐसी जो भी डिवाइस है, हाँ, वो डिवाइस हमें अंदर से हैप्पीनेस फील करती है, लेकिन वो हमारे बिहेवियर पे, हाँ, हमारे जो वर्तन है उस पे हम, उसका जो पर्सनालिटी होता है ना, वो देख के मैं पता कर लेता हूँ कि ये पेशेंट जो डिवाइस लगा के आया है ना, शायद उसमें ऐसा है। ऐसे मैं सोच के ऐसा बता रहा हूँ कि उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा होती है और वो डिप्रेसिव, क्योंकि सोशल मीडिया में आज ये पोर्नोग्राफी एडिक्शन, हाँ, एडिक्शन कैसा होता है, ये पोर्नोग्राफी का एडिक्शन होता है, गेमिंग का एडिक्शन होता है, और उससे वो ड्रग्स पे आ जाते हैं। तो ये सोशल मीडिया एडिक्शन से लेके जो रियल एडिक्शन है वहां तक चले जाते हैं। और उसकी वजह से, क्योंकि इसमें सब दिखाते हैं, क्योंकि हमारे मूवीज अभी ऐसा है कि उनमें भी ऐसा बता रहे हैं, हमारी सोशल मीडिया भी ऐसी है, और हमारा एटमॉस्फेयर इवन स्कूल में भी, हाँ, काफी टाइम लेटेस्ट न्यूज अभी है ही 1 हफ्ते पहले का कि एक स्कूल में वहां से सप्लाई होता है, जो कोई भी, किसी को भी पता नहीं होता ये कहाँ से आता है, कैसे जाता है, लेकिन ड्रग्स, एमडी ड्रग्स जिसको बोलते हैं, मीथाडोन, उनका सप्लाई होता था। और बच्चों अच्छी तरह पैसे न होने के बावजूद भी सप्लाई करते हैं, जो हमारी आगे की पीढ़ी को एक नेगेटिविटी में डालने की कोशिश है, बराबर है। तो ऐसे जो एडिक्शन है उसके वजह से और हम और नेगेटिव हो जाते हैं, हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं और हम डिप्रेशन
इवन मैं ऐसा बोलता हूँ मैनिक हो जाते हैं। मैनिक मीन्स कि हाइपर एक्टिव हो जाते हैं काफी टाइम। डिप्रेस होने की वजह से ज्यादा मैनिक हो जाते हैं, क्योंकि वो हमें जो मिल रहा है, जो कंटेंट हमें पिरस रहे हैं, वो ऐसा कंटेंट है जिससे हम खुशी तो मिलती है लेकिन वो खोखली है, उसमें कोई जान नहीं है। हाँ? तो ये चीजें ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम कैसे उसको लेते हैं, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हो या पॉजिटिव व्यू से लेते हो। एक ऐसा मैसेज था कि आप क्या जानना चाहते हो, बराबर है। एक मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने ऐसा मुझे पूछा एक मैसेज में कि आप क्या जानना चाहते हो। मैंने कहा मैं कुछ जानना नहीं चाहता, मैं जितना जानता हूँ ना वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे कोई क्यूरियोसिटी नहीं है कि मैं उसको जानूं। तो उन्होंने बोला तो आप क्या पूछना क्या चाहते हो। तो मैं कुछ नहीं पूछना, तो मैं जितना जानता हूँ उससे मैं खुश हूँ, मैं सेटिस्फाइड। तो ये पॉजिटिविटी हुई। मैं अगर ज्यादा जानूंगा या तो मैं उसमें डीप चला जाऊंगा, तो वो हमारे नेगेटिव मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करता है। हमारा मेंटल हेल्थ है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उससे हमारी एंजाइटी, हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ेगी। तो काफी टाइम जितना जरूरी है, जितना हो सके उतना ही हमारे लिए जानना जरूरी है। मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं अपना काम अच्छी तरह कर सकता हूँ। अगर मैं प्लम्बर हूँ, लाइटमैन हूँ या जो भी है, हाँ, तो मैं ऐसा बोलूँगा वो उसका काम है, उसको करने दीजिए। मैं करूँगा ना तो मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तो जो चीजें हमारे बस में है, जो चीज हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और जिसमें हमें खुशी मिलती है, वो चीजें करो, तो हम पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की ओर जाएंगे। वरना हम ज्यादातर नेगेटिव ही चले जाएंगे, क्योंकि क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए लेकिन वो लिमिट में होनी चाहिए। तो ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी ना तो ओसीडी बोलते हैं, ऑब्सेशन बोलते हैं जिसको। हाँ, कि हमें एक जानो तो उसमें क्या आता है, तो गूगल पे सर्च करो, वो करो, सब करके हम नेगेटिव मेंटल हेल्थ में चले जाते हैं और वो एंजाइटी डिसऑर्डर। तो टीनेज पॉपुलेशन है उसमें से 50% ऐसे टीनेजर्स है जो अपने जो टाइम होता है, जो उन्हें अपने खुद को देना चाहिए, अपने फ्यूचर के लिए सोचने के लिए देना चाहिए, वो ऐसी चीजों में वेस्ट कर रहे हैं जो उन्हें पसंद ही नहीं है, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। तो ये जो सिचुएशन है उसमें आपकी क्या एडवाइस है, इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? बेसिकली ऐसा है कि पहले से ही हम टीनेजर को ऐसी डिसिप्लिन सिखाए, हाँ, जो ऐसी जरूरी है। वो ज्यादातर काम टीचर और पेरेंट्स का होता है, हाँ, क्योंकि बच्चा किस तरफ जा रहा है वो टीचर से भी ज्यादा पेरेंट्स को पता होता है। तो पेरेंट्स को कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। हमारे जो भी बच्चे हैं उसमें सिबलिंग रिवाइवलरी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज है, हमारा बच्चा पूरे दिन स्कूल में जाके क्या करता है, घर आके क्या करता है, कौन लोगों से मिलता है, हाँ, और वो क्या एक्टिविटी करता है, वो सब उस पर हमें कंसंट्रेट करना जरूरी है। काफी टाइम हम बच्चों को टेलीविजन या मोबाइल दे देते हैं, हाँ? क्यों? हमें परेशान करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं भाई तू 1 घंटा ले ले या जो भी है, मोबाइल दे देते हैं हाथ में, बराबर है। तो ये सही चीज नहीं है। पहले अपने बच्चों की बात सुनो, हाँ, वो क्या कहना चाहते हैं। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो मम्मी पापा से घर आके क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ? तो आप अवॉइड करते हो उसको, वो क्वेश्चन का आंसर देने से अवॉइड करते हो। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि आप पहले कोई भी काम हो, अपना जो भी काम है वो रख के अपने बच्चों की बात सुनिए, हाँ, उसका आंसर दीजिए। आपको पता नहीं है तो जान के भी दूसरे दिन आप अपने बच्चे को जवाब दीजिए, हाँ, वो जरूरी है। क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि बच्चा बाद में आपको पूछेगा ही नहीं और वो आपकी डिसिप्लिन से बाहर चला जाएगा, हाँ, और वो बाद में सहारा लेगा सोशल मीडिया का, अपने जो भी फ्रेंड्स है उसकी बातों का, और आगे जाके वो इन फ्यूचर में, हाँ, वो आपसे ऐसा हो जाएगा कि आप डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा आपके बच्चे को। टीनेजर्स हो या, हाँ, चाइल्ड हो, जो भी है, उनको एक चीज ऐसी होगी कि वो फ्यूचर में ऐसी उनकी डिसिप्लिन हो जाएगी, कंडक्ट डिसऑर्डर बोलते हो, आप ऐसे बाहर हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। कहने का मतलब वो दूसरों की बातें नहीं मानेगा, काफी टाइम गाली गलौज करेगा, हाँ, और ऐसी चीजें करेगा कि आपको मतलब में फायदे से ज्यादा नुकसान ही होगा। चीजें तोड़ देगा, हाँ, मोबाइल नहीं लाया या डिमांडिंग बिहेवियर हो जाएगा उसका। तो पहले ऐसा होने से पहले जो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हाँ, उससे पहले फॉलो कीजिए कि हमारे बच्चे जो भी बोलते हैं वो सोशल मीडिया से नहीं, हमसे बोले। मैं जो चाहता हूँ वो करे।
वो जरूरी है। क्योंकि काफी टाइम ऐसे होते हैं कि मेरे बच्चा आज मुझे आके पूछता है कि आप कल जाने वाले हैं गजेरा स्कूल में, बराबर है, तो वहाँ क्या बोलोगे? तो मैं बोलूंगा मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, जो मुझे बोलना चाहिए। तो बोलते कि आपने तैयारी किया है? मैंने कि करना पड़ेगा, अगर नहीं होगी तो भी मैं बोलूंगा, क्योंकि वो मेरे में कॉन्फिडेंट है और मैं बोलना चाहूँगा। मेरा बच्चा 2nd स्टैंडर्ड में वो ऐसा पूछ रहा था मुझे, तो मैंने ऐसा बोला बेटा मुझे जो खुशी मिलती है ना वो मैं करूँगा, भले ही वो अच्छा लगे दूसरों को कि न लगे, पर मुझे खुश होना जरूरी है। क्योंकि मैं जो बोलता हूँ उसमें मेरी हैप्पीनेस नहीं होगी, मैं सेटिस्फाई नहीं होगा, तो वो दूसरों के लिए भी बर्बाद है और मेरे लिए भी बर्बाद है। हाँ, इसलिए मुझे जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। तो टीनेजर को इन फ्यूचर में मैं ऐसा बोलता हूँ कि उसकी चॉइस क्या है, पहला इंटरेस्ट क्या है वो पूछो। हाँ, और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको कोई भी स्ट्रीम हो या कॉलेज हो या जो भी फील्ड फैकल्टी में डालना है वो पहले पूछिए। काफी टाइम ऐसा होता है कि हम डॉक्टर इंजीनियर की ज्यादातर एक्सपेक्टेशन रखते हैं पेरेंट्स, पर ऐसा जरूरी नहीं है। मैं ऐसा बोलता हूँ कि वो एक अच्छा मनुष्य बन पावे ना तो सबसे बड़ी चीज है, वो अपने लिए टाइम स्पेंड कर सके तो सबसे बहुत बड़ी चीज है। हाँ? और वो अगर मनुष्य रहा ना तो पूरी दुनिया को एक कर सकेगा। हाँ? इसीलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसको डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर जो भी है, हाँ, चार्टर्ड अकाउंट जो भी बनाए, वो तो एक उसका क्वालिफिकेशन है, बाकी मनुष्य है वो उसकी डेजिग्नेशन है। हाँ? रियल डेफिनेशन ये होती है कि हमारी नेचर कैसा है, इंस्टेड कि हम प्रोफेशनल लाइफ में कैसे हैं। और आई थिंक समवन हैज राइटली सेड दैट एवरीथिंग स्टार्ट्स एट होम। अगर घर पे ही ऐसा एनवायरनमेंट है फुल ऑफ नेगेटिविटी, फुल ऑफ कंपैरिजन, तो बाहर जाके भी उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो उसे आना चाहिए, जो उसके फ्यूचर को भी इम्पैक्ट करेगा। जब उसे वर्ल्ड में अब इंडिपेंडेंट होने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज एवरीवन वंस हैव टू अर्न अ वेज, सर्वाइवल के लिए उसे वेज अर्न करनी ही पड़ती है। तो तब उसे जो कॉन्फिडेंस चाहिए, जो सोशल स्किल्स चाहिए, उसमें उसे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसके पहले से ही वो ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रोथ अप हुआ है जहाँ पे सिर्फ उसे मेंटल हेल्थ की नेगेटिविटी मिले, उसके सेल्फ डाउट्स रहे और वो उसे ओवरकम भी नहीं करे। तो आपने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के बारे में, तो क्या ऐसी कोई हैबिट्स हैं जो हम जॉय ऑफ मिसिंग आउट एम्ब्रेस करने के लिए अपना सकते हैं हमारी लाइफ में? ओके, मैंने पहले भी मैं एक्सप्लेन किया था कि हाउ टू एम्ब्रेसिंग जोमो। हाँ, तो पहले डिस्कनेक्ट कीजिए, अपनी जो भी ऑनलाइन सोशल मीडिया है उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए एंड यू आर एंगेज इन क्रिएटिविटी। दूसरा चीज है रिफ्लेक्ट, तीसरा है रिकनेक्ट। हाँ, हम लोगों से रिकनेक्ट हो जाए। हाँ? सोशल मीडिया से जितना रिकनेक्ट करते हैं उससे अलावा हम फैमिली और फ्रेंड से ज्यादा रिकनेक्ट हो जाए। और कीप स्टेइंग एंड डू नॉट कंपेयर विथ अदर्स। दिस इज द एम्ब्रेसिंग टू जोमो। इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग विथ अदर्स हमें खुद पे फोकस करना चाहिए। Means if we are pursuing something we really like, if we are pursuing something we really want to do for the rest of our time, then I think no matter what people say, we have to focus on the persuasion, we have to focus on our own journey and we don't have to lose our track. हम जो ट्रैक पे चल रहे हैं उसमें ही चलना है। लोग तो कहने ही वाले, क्योंकि जब हम कुछ परस्यू करते हैं, जब हम कोई ऐसी चीज करते हैं जो हमें बहुत पसंद है, ऐसे लोग साइड में खड़े ही होते हैं जो हमें खींचते हैं वहां से कि आपको ये नहीं करना चाहिए ऑल। सो उससे भी ओवरकम कैसे कर सकते? बेसिकली एक समझो ना कि एवरी मैन हैज यूनिक पर्सनालिटी। हाँ, तो आप क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आपको खुद को पता होना चाहिए। आप दूसरों की एडवाइस लोगे, हाँ, उसको फॉलो नहीं करना है, उसकी एडवाइस ले सकते हो, बराबर। आप अपने स्ट्रीम में कुछ जाना है, साइंस स्ट्रीम लेनी है या आप किस वजह से वो ले रहे हो, तो आप दूसरों की एडवाइस ले सकते हो, लेकिन आपको क्या अच्छा लगता है वो पहले सोचो। हाँ, और उसको फॉलो करो। हाँ? दूसरी चीज ऐसी है कि काफी टाइम ऐसा होता है कि हम एक चीज को छोड़ के, ऐसा होता है कि मुझे साइंस लेना है, बाद में एक महीना निकल जाए, बाद में पता चले कि मुझे ये बहुत टफ लग रहा है, अब तो मुझे कॉमर्स ही ज्वाइन करना चाहिए। हाँ? तो ये जो वेवरिंग माइंड है, जो भी विविड सिचुएशन है, हाँ, उसको हैंडल करो।
ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जो स्ट्रीम लिया है वो गलत है, वो आपकी चॉइस थी। आपने लिया है, पेरेंट्स ने भेजा है और आप उसके लायक थे, तो आपको इस स्ट्रीम में भेजा गया है। तो जो भी चीज है उसमें आप डीप जाइए, उसमें आप जितना इंटरेस्ट लोगे ना उतनी वो आपकी तकलीफ है वो डाउन हो जाएगी। अगर आप उससे डरोगे कि नहीं ये साइंस बहुत गहरी चीज है, उसमें जाना नहीं है, बहुत वो डरावना जैसा है, इसमें तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा या कुछ बन नहीं पाऊंगा, फेल ही हो जाऊंगा, ऐसी जो सोच रखोगे ना तो कभी नहीं। काफी टाइम ऐसे होते हैं कि हम ऐसी सिचुएशन में जाते हैं, लोग बोलते हैं कि ये रास्ते पे जाना बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ भूत प्रेत होते हैं या जो भी होता है। तो हम काफी सालों पहले सुनी बात भी हमारे दिमाग में एक लाइट होती है, जब हम उस रास्ते से जाते हैं तब हमें एक लाइट होती है कि यहाँ पे कुछ करना नहीं, हम सीधा ही निकल जाए जल्दी से। तो हमारी ब्रेन की ऐसी एक्टिविटी है, हमारे सेरेबेलम में ऐसी एक्टिविटी क्रिएट होती है जो कोई भी इमेज है उसको प्रिंट आउट करती है। आपको आज मैंने देखा है, आपके सामने आज मैंने टॉक शो किया है, तो ये इमेज है ना वो 5 साल के बाद भी क्रिएट ही रहेगी। तो कोई भी चीज हो उसको ओवरकम किया कैसे जा सके, हमें उसे फोमो से जोमो में कैसे कन्वर्ट किया जाए वो हमें सीखनी पड़ेगी। क्योंकि वो एवरी पर्सन हैज यूनिक पर्सनालिटी, सो हमें वो अपने तरीके से, कोई हमें सिखा के या कोई हमें डाइवर्ट करके नहीं कर सकता है ऐसा। आपके हिसाब से जोमो यानी जॉय ऑफ मिसिंग आउट का हमारी डे टू डे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? क्या कोई इम्पैक्ट है कि जोमो के बाद अगर हम जोमो हमने स्टार्ट कर दिया है कि एम्ब्रेस करना है जोमो, तो क्या चेंजेस आ सकते हैं हमारी लाइफ में? जोमो ऐसा चीज है कि उसको कैसे आप लेते हो। एक साइकोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था हेनरी डेविड थोरो, वो कहते थे कि वेल्थ इज द एबिलिटी टू फील एक्सपीरियंस लाइफ। तो हमारी लाइफ है वो बी जॉयफुल, बी सिंपल, बी रियल, बी मेसी, बी टुगेदरनेस। ऐसा करिए कि जो हमें आनंद मिले। आज मैं सुबह से आया हूँ, आज मुझे सुबह में जल्दी उठ के आना पड़ा है, कोई पर्पस के लिए मुझे जाना है, वो बोरिंग हो या जो भी है, लेकिन उसकी वजह से मैं आज सुबह में जल्दी उठा हूँ, मुझे स्कूल जाना है, आज छुट्टी है या जो भी चीज है, वो क्यों हुआ है? उसका 2 रीजन होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। आप उसको कैसे उसका मोल करते हो जब से वो इम्पोर्टेंट है। तो पॉजिटिविटी है वो हमारे में एनर्जी डालती है, हमें हमारा मूड है वो यूफोरिक करती है, बराबर है। हम बहुत खुश होते हैं अगर हमने कुछ अच्छा किया या हमें कोई अप्रिशिएट करे तो हम बहुत अच्छा यूफोरिक मूड हो जाता है हमारा, हम बहुत खुश लगते हैं, बराबर है। तो ये चीजें है जो जोमो की ओर ले जाती है कि भले ही हमें वो ना मिला लेकिन हमारे पास जो है उससे सेटिस्फेक्शन मिले। सेटिस्फेक्शन आपके पास नहीं होगा तो आप कितने भी अच्छे डॉक्टर हो, कितनी भी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो या कितने भी अच्छे आप टीचर्स हो, अपने स्टूडेंट को अच्छी तरह नहीं पढ़ाओगे या उसका सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिलेगा, तब तक मैं पढ़ाया है वो 0 ही है। बराबर है। स्टूडेंट भी सेटिस्फाई होना चाहिए, टीचर भी सेटिस्फाई होना चाहिए, डॉक्टर भी सेटिस्फाई होना चाहिए और पेशेंट भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आप टीनेजर्स को भी ऐसे ही उसको सेटिस्फाई कैसे करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो जोमो की ओर जा सकते हो। सेटिस्फेक्शन मतलब सेटिस्फेक्शन, लाइफ से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। मतलब अगर हम कोई पोजीशन में पहुंच गए हैं जिसके लिए हम कब से ट्राई कर रहे थे, वहाँ पे हमें मतलब पीस ऑफ माइंड तो मिल गया, पर दूसरे दिन हम किसी और को देखते हैं जो हमारे से भी हाई पोस्ट पे, तो हम फिर से ये सोचना चालू कर देते हैं कि वो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल है, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। जो हमने हार्ड वर्क किया है यहाँ पर पहुँचने के लिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। So I think satisfaction is one of the most needed aspect we have to have in ourselves to embrace joy. क्या कोई ऐसे स्टेप्स है जो हमें लेने पड़ते हैं जो फोमो को जोमो में कन्वर्ट करने के लिए? कोई ऐसी हैबिट्स जो हमें डेवलप करनी पड़ेगी और उसे हमें लाइफ टाइम तक डेवलप भी रखना पड़ेगा? काफी टाइम मैंने पहले भी बोला है कि हम जोमो को एक्सेप्ट क्यों करते हैं, बराबर। इसके कारण है कि पहले तो हमारे पास टाइम होना चाहिए।
हम कैसे उसको उसका इम्पोर्टेंस देते हैं, जो भी चीज हुआ है, जो इंसिडेंस हुआ है या जो भी बातें हैं, उसको कैसे आप कैलकुलेट करते हो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप सोच नहीं सकते, बराबर है, और सोच नहीं सकते तो आप उसका इम्पोर्टेंस नहीं कर सकते, बराबर। तो पहले तो हमें टाइम होना चाहिए। दूसरी चीज है कि काफी टाइम हम ऐसे होता है कि रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते कि ये बुरी चीज है या अच्छी है, हाँ? क्योंकि रिफ्लेक्ट होना बहुत जरूरी है, और रिफ्लेक्शन नहीं हो तो हम रिकनेक्ट नहीं हो सकते, बराबर है, क्योंकि हमें अच्छी चीज का पता नहीं है, बुरी चीज का पता नहीं है, हम खुद ही कंफ्यूज है तो दूसरों को क्या दे सकते हैं, बराबर है, हाँ? तीसरी चीज ऐसी है कि एक जो हमें काम करना है उस पर हमारा फोकस होना चाहिए, हाँ? हमारा सब कीप स्टेइंग कहते हैं ना, कि हमें उसमें पूरा हमारा जान लगा देनी पड़ती है तो हम उसको पा सकते हैं। हाँ, ये छोटी चीज है, ये फीलिंग्स है, फोमो और जोमो, वो एक फीलिंग्स ही है, लेकिन वो फीलिंग्स को आप कैसे डाइवर्ट करते हो वो आप पे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। आप उसे अच्छी चीज में डाइवर्ट करो तो जोमो बन जाता है, अगर बुरी चीज में डाइवर्ट करो तो वो फोमो आगे जाके बढ़ जाता है, ऐसी चीज। इन शॉर्ट हमारे पास दो वेज होते हैं, फोमो और जोमो। अब हमें कौन से वे पे चलना है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस। वेज हमें दो मिले, चलना हमें ही है। तो आई थिंक अगर हमें इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, हमारा जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ वो पॉजिटिव हो, तो हम खुद ही जोमो के वे में जा सकते हैं और हम खुद फोमो को इग्नोर करेंगे। पर अगर हमारे में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं, हमें बात पर ऐसे हिचकिचाहट होती है कि ये डिसीजन मेरा राइट है या रॉन्ग है, हमें दूसरों से पूछना पड़ता है, तो फोमो हो सकता है। I think it is very easy to sit in this point of life and look back at things which has happened to us, whether negative or positive, is a dot on the map of our life that has let us live. In today's world, people think that if someone is successful in their public life, they are happy in their private lives as well. But according to a research, like it's the other way around. If someone is happy, really happy in their private lives, they will be successful in their public lives. I think so many people are working hard on things they don't like, spending money they don't have, and buying things they don't need just to impress people they don't like. When we are basing our happiness onto something or someone external, like we are attaching ourselves to some person, or we are attaching ourselves to our work or occupation or any job, we can never be happy, because it is not related to us, it is related to something external. But when we are including ourselves in our happiness, when we have peace of mind, when we have self-confidence, everything is possible in the world. How many times have you ever taken decision based on fear of missing out? FOMO sometimes really control our life, from what we post to social media to where we go. We start living a life we think others expect of us instead of living a life we really want to. We say yes when we really want to say no, and we say no when we really want to say yes. So according to you, it's not like we have to disappear from people. We all love people and we all want to have a laugh and fun with them. So we can talk with them, and then we can directly convert the conversation into a deep, meaningful talks. And we can trade night outs for knowledge seeking sessions. So I think it's all about what we are planning to do. Nothing external can change our own decision. And according to me, you don't have to be around people all the time. All that is very precious is with you only. You breathe, you live, you have food on your table, you have a home, you have clothes to wear. So we need to cherish these moments, and we have to make best out of it through joy and love of being with our own self instead of being with someone or attaching our feelings with someone. Like when we start having a peace of mind, when we start having a satisfaction, that is all we need. So after having this wonderful talk show with you, we are really grateful. So at last, would you like to give any message or advice to our viewers? I have given message to other student. एक
बात मुझे याद आ रही, मैं आज बता ही देता हूँ कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन जी पार्थ जी कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि मेरे सामने जो खड़े हैं वो मेरे ही भाई है और मैं उससे युद्ध कर रहा हूँ, पर अब उसको मैं मार डालूंगा तो उसके बाद मुझे जो मिलेगी, सत्ता मिलेगी या राज्य मिलेगा, उससे मैं खुश होगा कि नहीं होगा? हाँ, मुझे खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो भगवान श्री कृष्ण जी ऐसे कहते हैं कि जो सामने खड़े है वो भी मेरा ही अंश है और तुम भी मेरे अंश हो, इसीलिए है पार्थ तुम बाण चढ़ाओ, हाँ, तुम अपना काम करो, फल मैं तुम्हें दूंगा। बराबर है? तुम रियलिटी को एक्सेप्ट करो, तुम दोनों मेरे अंश हो पर रियलिटी मैं हूं, श्री कृष्ण भगवान है, तो मुझे एक्सेप्ट करो, आप फोमो को मत एक्सेप्ट करो। तो मोर जोमो लेस फोमो, दिस इज द माय टुडेस लेक्चर्स मैसेज। So I think we just have to follow ourselves and our thinking instead of people and the world, and everything else will follow us. We are eternally grateful for your precious words and for being here today with us in this talk show over turning fear of missing out into joy of missing out. And thank you for being with us today and turning us around onto the right path. Thank you. Thank you.